Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the certain characteristics of the state, right? In that, we studied about state is supreme organism like a god on earth, right? Hegel's define the state as an actual god. Hegel state को क्या बोल रहा है यहाँ पे actual god define कर रहा है. Then state is natural. Hegel क्या करता है? Hegel rejects the idea. Hegel मानता ही नहीं है कि बाबा idea that state is in a social contract. Just a minute. Hegel rejects the origin of the state in a second contract. According to him, state क्या है? ये एक product है of long evolution, and this evolution passes through certain stages. Then state is a whole body. See, state is like a whole body. It is synthesis of family and society. Then state is an end. State is sovereign and supreme over all. See, state क्या है? ये क्या है? National और international affair का पूरा ध्यान रखता है. Sovereign of the state lays not in people but the king. Hegel also opposed the theory of separation of powers. See, freedom possible only in the state. See, अगर आपको शांति से रहना है, फ्रीडम चाहिए तो आपको स्टेट में ही रहना पड़ेगा, और स्टेट में यू विल गेट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ऑल. देन नेशनल स्टेट ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी. अकॉर्डिंग टू हेगल क्या है? ये जो नेशनल स्टेट है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट देन ह्यूमैनिटी. To safeguard its own interest and to protect its own sovereignty is the highest morality for the state. Evil doing and corruption of nation can be removed only through the declaration of war. Then war works as a stimulus for state. See, war plays an important part in the world history. It fosters good quality among citizens like patriotism, courage, bravery, etc. A successful war prevents civil unrest and strengthens internal power of the state. When need arises, the state may call upon their families. War should not be against private person and their families. It should be conducted as humbly as possible. Then state is absolute and infallible. बराबर है ना? स्टेट एब्सोल्यूट है और नो वन इज़ आंसरेबल. लाइक जो भी स्टेट डिसीजन लेगा वो हर एक को इंडिविजुअल आंसर नहीं देगा, ना ही आप अकेले जाके स्टेट को कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो. इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी मॉरल कोड. द स्टेट फिक्सेस द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी फॉर इट्स सिटीजन. देयर आर नो लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट. स्टेट्स पावर इज एब्सोल्यूट. स्टेट इज द एम्बॉडमेंट ऑफ रीजन. State is the highest product of reason. It is like a god, omnipotent. State's duty is only direction, regulation and supervision. See, state का ड्यूटी क्या है? सबको अच्छे से सब कुछ अच्छे से रेगुलेट करना एंड ऑल है. Then individual is subordinate to the state. Metaphysics theory of state. Then we studied the state and government. Right? State and government भी अपन ने पढ़ लिया था. स्टेट एंड गवर्नमेंट बस शॉर्ट में बोल देती हूँ थोड़ा सा. राइट. सी, इन हेगल्स राइट्स क्या है? स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी. राइट. और उसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूट डिविजन्स है. एक द पावर टू डिटरमाइन एंड एस्टैब्लिश द यूनिवर्सल, द लेजिस्लेचर. सेकेंड, द पावर टू सबसुमाइज सिंगल केसेस एंड स्पेयर्स ऑफ पर्टिकुलरली अंडर द यूनिवर्सल, द एग्जीक्यूटिव. द पावर ऑफ सब्जेक्टिव एज द विल with the power of ultimate decision, the crown. See, अब we can conclude. अपने क्लासिफिकेशन के लिए अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? He was in favor of monarchy form of government, right? Among all the division, the legislative holds the most important position. He did not suggest suppression of power. अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्या देखेंगे कि कुछ भी हार्डली कुछ भी इसमें सीरियसनेस रहेगा. This type of classification is हेगल्स का ही है. लेजिस्लेटिव पावर इज वेस्टेड इन द असेंबली ऑफ स्टेट. असेंबली ऑफ स्टेट आर द होल एंड द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट. देन स्टेट एंड सोवेनिटी. सी, अपन ने कल ये पॉइंट चालू किया था. अपन क्या है, अपने को क्लियर कंसेप्ट सोवेनिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि इतना कुछ लिखा है. फिर भी
It means that Soviet Unity holds in the power to utter the last word on any issue or matter. Both legislature and executive are the two other branches of government, but so far as the ultimate power is concerned, monarchy is above two other branches. Hegel's view that sovereignty power is vested in monarchy does not give us a full picture of the subject. Rather, it is partial. Why? He has argued that the state is indeed the Soviet because in the state reason, idea, spirit, and freedom are represented. Moving forward, the state sovereignty requires a personification, and that it is to be found in monarchy. Granting that sovereignty in concept may probably be said to be an attribute of the state as a whole, we contend that sovereignty in reality and in action consists in the final decisive indication of an individual will. The Hegelian concept of sovereignty reassembles the British system. ये जो हेगल्स का कंसेप्ट सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम के बारे में बोलता है, बट उसके अंदर क्या है, बट दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड टू सी दैट ही डिड नॉट रिकमेंड अनफ्लटर्ड प्रोग्रेसिव पावर ऑफ द सोवियत अथॉरिटी. टू हिम इट वॉज सिंपली वन ऑफ द फॉर्मल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. सी टू हिम क्या है, इट वॉज सिंपली वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है. ही आर्ग्यूड however that the acts of the states are the acts of minister who are responsible, whereas the personal magistrate of the monarchy is above all answerable for the act of government. See, even the Soviet of the state is not such as the denying the rule of law under the ordinary circumstances. See, even the Soviet of the state is not such as to deny the rule of law under ordinary circumstances. Explaining the Hegelian theory of sovereignty, Marxist says that it proceeded directly from his acceptation of state as the internal manifestation of the ultimate consciousness, and will his theory of sovereignty is not the outcome of contrast, it is necessary unity of state itself. See, अभी हेगल्स थ्योरी क्या बोल रहे हैं कि बाबा ये जो डायरेक्टली चल रहा है स्टेट, ये क्या है, it can be an external manifestation of the ultimate consciousness. However, Hegel's sovereignty is absolute and indivisible. See, however क्या बोल रहे हैं, Hegel's sovereignty क्या है, is absolute and indivisible. In his judgment, people are formless and not fully conscious. See, उसके जजमेंट में, हेगल्स के जजमेंट में क्या है, people are formless and not fully conscious. So they cannot have power to exercise Soviet authority. इसलिए क्या है, उनके पास कोई पावर नहीं रहती ताकि वो सोवियत अथॉरिटी अच्छे से यूज़ कर सके. हेगल thus rules out the possibility of popular sovereignty. See, हेगल क्या कर रहा है, हेगल thus rules out the possibility of popular sovereignty. By doing this, he makes his philosophical analysis more consistent. See, by doing this, ऐसा करते हुए क्या कर रहा है, he makes his philosophical analysis more consistent. Then criticism on Hegel's state. अभी हेगल स्टेट के कुछ क्राइटिज्म्स हैं, मतलब ड्रॉबैक्स भी है. अभी अच्छा सब कुछ अच्छा थोड़ी चलेगा, कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही इसमें. अभी इसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स है, स्टेट नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. हेगल मेड द स्टेटमेंट as an end in itself, but it must be realized that the state exists for the individual. See, Hegel made the state as an end in itself. Hegel ने क्या बोला, स्टेट एंड है, जो स्टेट ने बोला वही होगा, बट एक्चुअली स्टेट एंड रहता है क्या, नहीं. वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल इज द एंड ऑफ द स्टेट. सी, वेलफेयर, इंडिविजुअल की भलाई, सबका अच्छा हुआ यानी स्टेट का द एंड होने का. Anti-democratic. Hegel's totalitarian state and absolutism are against the spirit of liberty and democracy. Hence, it is outdated. See, Hegel's क्या है, Hegel he is against the democracy, right? But आज democracy के against जाके कुछ अच्छा होने वाला है क्या? Today, in today's world, democratic form of government is the best government. But Hegel denies this. According to Hegel क्या बोलता है, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए.
then leads the state absolutism, totalitarianism and aggressive nationalism. Hegel's theory of state leads for Hitler's Nazism and Mussolini's fascism. See, Hegel's theory of state किसके लिए है? मुसोलिनी और हिटलर के लिए है. क्यों? उन्होंने बहुत बुरी तरह से रूल किया था. लाइक हिटलर और ये मुसोलिनी तो ऐसे थे कि बाबा बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे. इनफैक्ट हिटलर की जब जर्मन वॉर वगैरह चला, जब हार हो गई थी, तो हिटलर ने सुसाइड किया क्योंकि वो बहुत इगोइस्टिक आदमी था और उसको हार बर्दाश्त नहीं होती थी. और हिटलर के लिए क्या है, जो वो बोलेगा वही सबने करने का, और जो फॉलो नहीं करेगा ही विल बी डेड. मतलब वो इतना हिटलर ऐसा था. आपन ने शायद पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में वगैरह, आपने अच्छे से पढ़ा होगा हिटलर एंड मुसोलिनी. तो हेगल वॉज द गॉड फादर ऑफ हिटलर. हेगल क्या था? गॉड फादर था हिटलर का. मतलब इमेजिन, हिटलर ही इतना डेंजर था तो ये हेगल कितना डेंजर रहेगा. इट डेंजर्ड द वर्ल्ड पीस. मतलब अगर आप हेगल के हिसाब से जाओगे तो क्या है, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का पीस भी खतरे में आ जाएगा. स्टेट नॉट इनफॉलेबल. स्टेट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन एजेंसी एंड एज सच इट कैन नॉट बी इनफॉलेबल. सी, स्टेट कैसे चलता है? आदमियों से, ह्यूमन बीइंग से चलता है, राइट. स्टेट कैसे चलता है? इट रन्स थ्रू द ह्यूमन बीइंग. बट अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहेंगे तो स्टेट भी नहीं रहेगा. बराबर है ना? क्योंकि स्टेट किसके लिए काम कर रहा है? ह्यूमन बीइंग के लिए काम कर रहा है. तो स्टेट इज इनफॉलेबल. द स्टेट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज रन बाय अ सेक्शन ऑफ पीपल. सी, जो स्टेट है अगर एक्चुअल में देखा जाए, ये कौन रूल करता है? इट इज़ रन बाय सम सेक्शन ऑफ पीपल. बराबर है ना? कुछ लोगों को अपन रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और वो अपनी सारी मांगे वगैरह रख के स्टेट अच्छे से रूल करते हैं. टू गिव अल्टीमेट पावर टू देम इज बैड. सी, अपन पूरा पावर उनको देना ये गलत बात है. बिकॉज इट encourages द रूलिंग सेक्शन टू बी ऑप्रेसिव एंड आर्बिट्री. सी, इट गिव अनलिमिटेड पावर टू देम इज बैड. बिकॉज ये क्या करता है, एक ही सेक्शन को सारा रूल करने का ऑथोरिटी दे देता है. हेगल्स सपोर्ट टू वॉर एंड एब्सोल्यूटिज्म वुड बी टोटली अनएक्सेप्टेबल to the citizen of modern state who lives under the shadow of a nuclear war. See, हेगल क्या बोलता है? वॉर को सपोर्ट कर रहा है, बट एक्चुअली अगर वॉर होते रहेंगे, स्टेट में भी अगर वॉर होते रहेंगे तो कोई भी शांति से रह पाएगा क्या? नहीं. हर कोई डर डर के ही रहेगा ना कि बाबा कब क्या वॉर हो जाए. सी, डू यू नो, कश्मीर में लोग कितना डर डर के रहते हैं, कब क्या आतंकवादी हमला करे, कब कौन से स्कूल में हमला करे. लाइक बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना, लौट के आएंगे कि नहीं, पेरेंट्स को इतना खतरा बना रहता है वहाँ पे. आई नो मिलिट्री पावर है जो पूरा ध्यान रखती है, एवरीवन इज देयर, हर कोई वहाँ पे सावधान रहता है, सब रहता है, बट फिर भी वहाँ के लोगों के मन में एक डर सा हमेशा रहता ही है. क्यों ऐसे? क्योंकि कश्मीर क्या है, यहाँ पे आतंकवादी दिन रात आते रहते हैं, उनको मौका मिला कि घुसते हैं, देन दे फायर एंड ऑल, फिर मिलिट्री आती है, फिर बैक फायरिंग वगैरह चलते रहता है. तो इन सब चक्कर में क्या है, लोग हमेशा पीछे जाते हैं. इसमें लोगों का ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. तो क्या है, अगर हेगल क्या बोलता है, वॉर रहना होना चाहिए स्टेट में, और वॉर होगा तो कौन शांति से रह पाएगा? हर कोई न्यूक्लियर वॉर के टेंशन में ही जिएगा ना. सो ये थॉट उसका गलत है. देन व्यू ऑन फ्रीडम. हेगल्स थ्योरी ऑफ फ्रीडम इज कॉम्प्लेक्स एंड स्वीपिंग, and while most interrupts of Hegel's will readily agree that it is the centerpiece of his political philosophy, perhaps also of his social philosophy and philosophy of history, they will just as readily disagree about what exactly the theory claims. See, Hegel's theory of freedom क्या है? ये complex है, ये बहुत ज़्यादा complicated है and sweeping है. और क्या है, मोस्टली इंटरप्ट्स ऑफ हेगल्स विल रेडिली एग्री. और जो हेगल को फॉलो करते हैं वो लोग भी एग्री करेंगे कि दैट इज़ द सेंटर पीस ऑफ हिज पॉलिटिकल फिलोसॉफी, परहैप्स ऑल्सो ऑफ हिज सोशल फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री. दे विल जस्ट एज रेडिली डिसएग्री अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द थियरी क्लेम्स. सी, ये लोग क्या है, ये लोग हमेशा डिसएग्री करेंगे कि बाबा एग्जैक्टली ये थियरी क्या है. सच interpretive disagreements have fueled in large part. See, such interpretive disagreement ये क्या है, large part में fueled है the
submerge of interest in Hegelian philosophy over the last few decades. यहाँ पे क्या है, बहुत से पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट है और रेजिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन हेगेलियन फिलोसॉफी कुछ लास्ट डेकेड्स से है. The contemporary social, political and economic situation of German was one of the chief source of political thought of Hegel. See, the contemporary social, political and economic situation of German was one of the chief source of political thought of Hegel. German was ravaged by corruption in all levels of society. See, जर्मन क्या था, जर्मन में बहुत ज़्यादा करप्शन था. करप्शन से हर जगह करप्शन था पूरी, और जर्मन में करप्शन फैला था. राइट फ्रॉम द सोसाइटी, चाओस, इनडिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म एंड ग्रुपिज्म. मतलब क्या उस वक्त जर्मन में क्या क्या, सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा करप्शन, सोसाइटी भी बुरी तरह से डिवाइड हो चुकी थी. हर जगह दंगे फसाद, इनडिसिप्लिन, कोई की अच्छे से सिस्टमैटिक वे में कुछ भी नहीं चल रहा है, और हर जगह ग्रुपिज्म है. इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वॉज अ स्टेक. सी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन क्या था, वॉज एट स्टेक. बट वी नो दैट द सैचुरेटेड सपोर्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनल स्टेट. बट हेगल क्या बोलता है, उसको पता है कि कैसे सपोर्ट करना चाहिए, क्या चाहिए. द यूनिटी ऑफ जर्मन रिसीव्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी इन दिस एनालिसिस. सी, इन सब एनालिसिस में क्या हो गया, ये जो जर्मन है, जर्मन रिसीव्ड द highest priority in this analysis. Then the prevailing contemporary situation of German inspired him to form the opinion that individualism stands on the way of attaining and perpetuating national integration. See, the prevailing contemporary situation of German, उस वक्त जो जर्मन का सिचुएशन था, वो इंस्पायर्ड हिम टू फॉर्म द ओपिनियन. उससे क्या है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया सो दैट ही कैन फॉर्म द ओपिनियन. क्या ओपिनियन था कि बाबा इंडिविजुअल खुद के लिए कुछ भी कर सकता है, राइट. और अगर आप उसको मोटिवेट करोगे तो वो देश के लिए भी कुछ भी करने को तैयार होगा. पीपल मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल शो अनकंडीशनल अलायंसेस टू द ऑथोरिटी. सी, लोगों ने पहले क्या दिखाना चाहिए, अनकंडीशनल अलायंसेस टू द ऑथोरिटी. मतलब अनकंडीशनल सब कुछ करना चाहिए, अच्छे मन से सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे. द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मस्ट कम फर्स्ट एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट. सी, यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट का क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचना चाहिए, और उसको अपन पूरा प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी शुड सी दैट कि बाबा पूरा प्रोटेक्शन मिले उस बात को. Individualism was to him another name of professionalism and particularism. See, individualism क्या है, ये एक दूसरा नाम था of professionalism and particularism. Parochialism and groupism had no place in his philosophy. See, ग्रुप बनाना, एक साथ ग्रुप में रहना एंड ऑल, इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं थी हेगल के फिलोसॉफी में, राइट. ग्रुप बना के तो आप रह ही नहीं सकते एज पर द हेगल्स. सो ही डिड नॉट इंटेंड टू गिव द इंडिविजुअल्स प्राइवेट इंटरेस्ट प्राइम इम्पोर्टेंस. सी, इसलिए उसने इंडिविजुअल के प्राइवेट इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं. लाइक हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना कुछ ना कुछ तो पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, प्राइवेट इंटरेस्ट रहता है, उसको हेगल ने कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया. हेगल डिड नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू सच इंटरेस्ट, एनी प्राइवेट इंटरेस्ट. George Wilhelm Friedrich Hegel, according to Sabine, also identified individualism with Jacobinism, violence, terrorism, fanaticism, and anarchism of the French Revolution. Moreover, his assessment of the individual was very low. See, George Wilhelm Friedrich Hegel, according to Sabine, उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, इंडिविजुअलिज्म विद जैकोबिज्म, वायलेंस, टेररिज्म, फैंटासिज्म एंड एंटीथेसिस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन है सारा. मोरओवर हिज असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वाज वेरी लो. और उसके अलावा भी क्या था, जो इंडिविजुअल का उसने असेसमेंट जो किया था वो भी बहुत लो था. द इंडिविजुअल इज मेयरली characterized an animal governed by brute instinct
with no rule of action higher than his own impulses, appetites and inclination, with no rule of thought higher than his own fantasies. See, इंडिविजुअल क्या है? एक ऐसा आदमी है जो सब पहले अपने बारे में सोचता है, लाइक खुद का इंटरेस्ट, खुद का पेट कैसे भरूँ, कुछ रूल्स बने तो ये रूल में मैं फिट हूँगा क्या, ये रूल्स मेरे लिए बने हैं क्या, इस रूल से मुझे कितना फ़ायदा होगा, ये रूल से मेरे को कितना नुकसान होगा. इंडिविजुअल क्या है? दिन रात ऐसे ही सोचते रहता है. देयर आर फॉलोइंग द क्राइटेरियन ऑफ हेगल आइडियाज ऑफ फ्रीडम. सी, पैराडॉक्सिकल. Hegel's meaning of freedom is full of paradox. See, Hegel meaning of freedom क्या है? It is full of paradox. Choice is the essence of freedom and the deny freedom. See, choice क्या है? ये एक essence of freedom है and it would deny the freedom. Hegel makes freedom absurd by holding that freedom is no freedom when it does not coincide with the goodwill. See, Hegel makes freedom absurd बाय होल्डिंग दैट फ्रीडम, एक्चुअली फ्रीडम के नाम पे आप फ्रीडम ही नहीं दे रहे हो, तो क्या अच्छा है यहाँ पे? अगर आप फ्रीडम के नाम पे प्रॉपर फ्रीडम दो, सब कुछ अच्छे से करो, तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस है, तो उसका कुछ वैल्यू है. अदरवाइज वो फ्रीडम किस काम की? देन कॉन्फ्लिक्टिंग इम्प्लीकेशंस. हेगल्स कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम हैज़ मोर देन 63 conceptual implication in the realm of philosophy, logic and metaphysics, but it is not so in the world of politics, which is full of diversity and conflicts. See, Hegel's concept of freedom में क्या है? 63 implications है. कितने implications है? 63 implications है. बाप रे. और ये सारे किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन फिलोसॉफी, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स, इन सब पे बेस्ड है. और ये पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को सूट होते हैं क्या? नहीं. आज पूरा वर्ल्ड का पॉलिटिक्स कैसा है? हर कंट्री का अपना अलग अलग पॉलिटिक्स है, उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनमें भी अलग अलग थॉट प्रोसेस है एंड ऑल. उनमें ये जो उसका कंसेप्ट है फ्रीडम वाला, ये बैठना इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल. कॉमन गुड सो जनरल विल मे नॉट बी डिस्कवर्ड so easily as visualized by Hegel and Rousseau. See, common good so general will not be discovered so easily as visualized by Hegel and Rousseau. Yeah. Then state absolutism. Hegel's idea of freedom in the realm of politics signifies the fact acceptance of the authority of the state. See, Hegel's idea of freedom क्या है? In the realm of politics signifies the fact acceptance of the authority of the state. State and society become authority of the state. See, state and society क्या बन जाते हैं? ये authority of the state बन जाते हैं. State society becomes identifiable with each other. See, state society क्या है? एक दूसरे से identified बन जाते हैं, क्योंकि स्टेट सोसाइटी दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट रूल्स रेगुलेशन बनाता है और सोसाइटी वो फॉलो करती है. एन अटेम्प्ट टू इग्नोर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू मे लीड टू अल्टीमेट स्टेट रेगुलेशन ऑफ लाइफ. सी, अगर आप स्टेट को और सोसाइटी को दोनों को अलग अलग करोगे तो क्या होगा? आपका कुछ भी अच्छे से रेगुलेट नहीं होगा. देयर वुड बी नो प्रॉपर स्टेट रेगुलेशन ऑफ लाइफ. देन फिलोसॉफी ऑफ डायलेक्टिक्स, ये फिर से एक बड़ा चैप्टर. अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में तो ये लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा. मीनवाइल रीड द टॉपिक वेल. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. माई मेल ID इज़ rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.